on cervix cancer, a health topic that truly touches many hearts and lives. And today is not just a session, it is a step towards awareness, empowerment, and prevention. Because when it comes to cervical cancer, early detection can save the lives. And today's session is specially designed to clear the doubts and break the myths. We will focus on understanding the myths and truths of cervical cancer. And by the end of this workshop, what can we take away along with us will be what exactly cervix cancer, why regular checkups are done, and who should undergo the screening and who should not go under the screening, and common symptoms, and finally the available treatment. Uh, though it is the most preventable cancers, yet it remains a major health concern due to lack of awareness and delayed screening. This is why today's discussion is so important. And before we begin this insightful journey, it is my honor to invite our health and nutrition convener, Rachna, to give the welcome note. Thank you, Rachna sir. ji, Thank you, Sarla the ji. welcome note, please. सादर जय जिनेंद्र जी। तो लेडीज विंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की प्रोजेक्ट कन्वीनर के रूप में मैं आप सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करती हूँ। I extend a heartful welcome to all the esteemed guests, senior officials, and all members associated with this cervic cancer awareness session. सबसे पहले मैं मंचांसीन हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर राजेश कुमार जी जैन, मैम ज्वाइन कर लिया सरला जी इन्होंने? हाँ, मैंने बोल दिया है उनको, ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग। हाँ, डॉक्टर साहब ज्वाइन हो। सबसे पहले मंचासीन हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर राजेश कुमार जी जैन, वर्किंग कमेटी एपेक्स महावीर जी चपलोत, हमारे प्रेरणा स्रोत डायरेक्टर इंचार्ज सोनाली जी दुग्गड़, आदरणीय नेशनल चेयरपर्सन शीतल जी दुग्गड़, माननीय सेक्रेटरी रितु जी चौड़िया, सम्मानीय सेक्रेटरी शशि जी मंदोत, सेक्रेटरी सरला जी भुतोरिया, आदरणीय ट्रेजरर कविता जी शाह तथा उपस्थित सभी एपेक्स पदाधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों का सर सम्मान अभिनंदन करती हूँ। आज का यह सत्र केवल एक स्वास्थ्य चर्चा नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन की सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण की दिशा में एक अत्यंत आवश्यक पहल है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी समय पर पहचान और सही जानकारी से रोकथाम संभव है, फिर भी जागरूकता के अभाव में इसके कई मामले छिपे रह जाते हैं। जी तो लेडीज विंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का यह प्रयास जागरूकता फैलाना, छिपे हुए मामलों की पहचान करना, महिलाओं का सशक्त बनाना है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मजबूत उदाहरण स्थापित करने की दिशा में समर्पित है। आज हमें अत्यंत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार जी जैन, प्रिंसिपल डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल दिल्ली से जुड़े हैं, उपस्थित है, जो अपने अनुभव और विशेष मार्गदर्शन से हमें रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और सही दिशा प्रदान कराएंगे। I request all of you to not limit the information gained from here, this session, to yourself alone, but to spread it to every woman in society, because an aware woman is the foundation of a healthy family and healthy strong society. आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए हृदय से धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ओवर टू यू सरला जी। Thank you, Rachna ji, for the warm and thoughtful welcome. Now it's turn to invite the ever-smiling, highly motivated leader, Sheetal ji, for her to especially speak to the direction of women's health and well-being. I invite you, Sheetal ji, to address the gathering. Thank you, Sarla ji. Respected JLW Director in Charge,
Sonali ji Duggar, and my core team Yashma ji, Sarla ji, Shashi ji, Kavita ji, and all my Apex team, my all chairperson and chief secretaries who are present here, and dear members. Thank you for joining today's afternoon, this very informative session, which Dr. Jain is going to tell us about how the cervical cancer happens and how to take precaution on it. So it's very dangerous, actually, disease, which we can say like giant disease, which in our community, it started taking place. So it's very bad that why this happening, we will get to know about for this with Dr. Jain, because it's a very rare disease, and now it becomes a very famous disease actually, that everyone is getting here and there, wherever we are seeing in our family, friends, everywhere, that one of them are having breast cancer first, then this cervical cancer, and then blood cancer and other cancers. So it's very dangerous, and how we can take precautions, we will get to know. So thank you, Mr. Jain, for giving us valuable time from your hardworking day. Thank you. Sarlaji. Thank you, Sheetalji, for your soft and impactful thoughts sharing. And your words are truly uplifting the spirit of everyone present here today. Now, it's turn to invite the most energetic, visionary, and out-of-the-box thinker, our director in charge, Sonali Ji Dogar. So can we have you, Sonali Ji? मैम सोनाली मैम नॉन रीचेबल कर दिया मैंने, तो वॉइस नहीं आएगा उनका. We can महावीर proceed. जी, वॉइस नोट आ रहा है क्या उनका? हाँ मैम, नहीं वॉइस नोट नहीं आया. Okay. Do we have Mahavir Ji Shweta? नो मैम, महावीर सर भी नहीं है. सरला जी. Shweta, हाँ जी. हाँ. Okay, we don't have Sonali Ji. So, in the absence of Sonali Ji, maybe later on we can have her speech. Now it's turn to know about our today's speaker, Dr. Rajesh Jain. Dr. Rajesh Jain is a distinguished surgical oncologist with over 26 years of experience, and is renowned for his pioneering surgical techniques and unwavering commitment to delivering the highest standard of care. His expertise spans the treatment of cancers in the head, neck, breast, thoracic, gynecological, and urological regions. He played an instrumental role in establishing the departments of surgical oncology at both BLK Super Specialty Hospital and Action Cancer Hospital. And he contributed towards development of the standards of operating procedures. With strong academics, he has proved that with strong academics focus, Dr. Jain has been actively involved in research projects and the mentorship of junior doctors. And his work experience includes currently working at BLK Max Super Specialty Hospital, New Delhi. Is director and head of surgical oncology and is consultant and head surgical oncology at BLK Super Specialty Hospital, New Delhi. Is the consultant for surgical oncology, Rajiv Gandhi Cancer Institute, New Delhi, and the Register of Surgical Oncology, Indraprasth Apollo Hospital, New Delhi. And he did his DNB from the National Board of Examination, New Delhi, MS from Silchar Medical College, Assam, MBBS from Silchar Medical College, Assam. And this is not the limit. His expertise includes robotic cancer surgeries, head and neck cancer surgeries, breast cancer surgeries, thoracic and urocancer surgeries.
and he is member of Indian Society of Oncology. So it is indeed a very good opportunity and privilege for the ladies and members of Jito Ladies Wing to have Dr. Rajesh Ji Jain with us to enlighten us about the cervix cancer. I welcome you, sir. The floor is all yours. Jai Jinendra. Am I Jai audible? Jinendra. Yes, sir, we can hear you. आज विश्व कैंसर दिवस है और वर्ल्ड कैंसर डे पे यू विल बी हैप्पी टू नो दैट तेरापंथ महिला मंडल इज ऑर्गेनाइजिंग ए नेशन वाइड कैंप्स for pap smear and cervical cancer awareness, and it is being done at my center also. So I am the main convener of doing the entire thing, entire program nationwide. And so my गला खराब हो गया सुबह से चिल्लाते चिल्लाते. So it's going, camp is going great. In our hospital, the camp which we are doing, we have already registered more than 500 ladies since morning, and it's still on. People That's are great. flowing in. So that's a good thing. Coming back to our topic, before knowing cervical cancer, we should know what cervix is. Cervical चीज क्या है? बच्चेदानी होती है, we call it uterus, और जो यूटरस होता है उसके सबसे नीचे का पार्ट होता है, उसको हम सर्विक्स कहते हैं. सर्विक्स एक तरह से यूटरस का मुंह है जिसपे ताला लगा होता है, और जब डिलीवरी होती है तब वो ताला खुलता है और बच्चा निकल के बाहर आता है वजाइना में. इस तरह से डिलीवरी होती है. अदरवाइज वो सर्विक्स का ताला हमेशा बंद रहता है, और महीने में एक बार जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसी ताले के थ्रू अपना मेंस्ट्रुएशनल जो ब्लड निकलता है वो निकलता है. नाउ ये गेटवे है यूटरस का. नीचे एक छोटा सा ऑर्गन है. ये ऑर्गन इज वेरी मच प्रोन टू कैंसर. ये ऑर्गन कैंसर के लिए प्रोन है, और ये कैंसर मोस्टली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है. दिस इज वन ऑफ द कैंसर जो कि वायरस की वजह से होता है, जिसका कारण हमें पूरी तरह पता है. एक चीज समझ लीजिए, जब हमें पता है कि ये आदमी चोर है तो पकड़ना आसान है. दिस इज द कैंसर जिसमें पता है कि ये चोर है. जैसे मुंह का कैंसर है, पता है तंबाकू पान मसाला गुटखा चोर है, इसीलिए उसको रोकें तो वो कैंसर कंट्रोल हो सकता है. इसी तरह ये एक कैंसर है जिसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कैंसर करता है, पता है. तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होने ना दें. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया तो उसके इफेक्ट को रोक दें. इस तरह से हम इस कैंसर को रोक सकते हैं. इसका बर्डन समझने की बहुत जरूरत है हमारे देश में. बर्डन ऐसा है, बर्डन कहने का मतलब हुआ कि ऑफिशियल डेटा के मुताबिक तकरीबन 3-3.5-4 लाख पेशेंट सर्वाइकल कैंसर के होते हैं हमारे देश में हर साल. और उस 3-3.5-4 लाख पेशेंट के अंदर 75% पेशेंट मर जाते हैं इस कैंसर की वजह से. सिर्फ 20-25% पेशेंट जो बच पाते हैं. और ये अगर आंखें खुल जाए हमारी, तो ये जो 75% मरते हैं इसको हम 0% कर सकते हैं. अगर हमारी महिलाओं की आंखें खुल जाए तो सर्वाइकल कैंसर से एक आदमी भी इस देश में नहीं मरेगा. मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ. इसीलिए आज इतना बड़ा कैंप लगाया और इतना आज अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि इट इज पॉसिबल टू कैच इट अर्ली. इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट इट. सो प्रिवेंटेबल कैंसर में से सबसे कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर है. अब सर्वाइकल कैंसर जो है हमारे देश में दो भाग है, एक है रूरल, एक है अर्बन. अर्बन हिंदुस्तान में सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, और रूरल इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर. अर्बन इंडिया में सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 है. तो सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों को मिला ले पूरी इंडिया में, तो हमारी महिलाओं का तकरीबन 75% कैंसर कवर हो जाता है. सो इतना कॉमन चीज है. अब ये जो कैंसर है, ये कैंसर सडनली नहीं होता. ये कैंसर में पहले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होगा, और वो इन्फेक्शन होने के बाद धीरे धीरे वो सर्विस को डैमेज करना शुरू करता है. सर्विक्स में तरह तरह के चेंजेस आते हैं, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है. वो होते टेक्स ऑलमोस्ट 1 ईयर. एक बार इन्फेक्शन होने के बाद में 10 साल 12 साल 15 साल लगता है कैंसर डेवलप होने में. तो ये जो 10 साल 15 साल 12 साल का पीरियड है, पूरा पीरियड है. इस पीरियड में हम
इन्फेक्शन को या इन्फ्लेमेशन को जो चेंजेस है वहीं रोक सकते हैं, कहीं भी हम उसको रोक सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं, तो कैंसर नहीं होगा। तो ये जो पीरियड मिल रहा है 10-12 साल में, इस 10-12 साल में भी कोई लेडी अपना चेकअप करा ले और पता चल जाए कि अरे भाई इसको ये चेंज है, तो सर्वाइकल कैंसर होने से रोक सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर यूरोप अमेरिका में इज अ रेयर डिजीज। क्यों? क्योंकि वहां पे पेप्समियर या अर्ली डिटेक्शन मैंडेटरी है, साल में एक बार सबको करना ही है। नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस मान्य नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं करा सकते कभी। वहाँ ट्रीटमेंट इतना महंगा, बिना इंश्योरेंस के कोई करा नहीं सकता। और इंश्योरेंस के पहले स्क्रीनिंग मैंडेटरी है, तो सब कराते हैं स्क्रीनिंग। तो किसी को डिटेक्ट होता है तो सर्वाइकल कैंसर होने के पहले के चेंजेस है उसी में डिटेक्ट हो जाता है, और वहीं वो ट्रीटमेंट ले लेते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, अमेरिका और यूरोप के डॉक्टर हमारे पास आते हैं कि भाई सर्वाइकल कैंसर देखने में कैसा लगता है, हमें दिखाओ। इसके बारे में ट्रेनिंग लेने समझने हमारे पास आते हैं, क्योंकि उनका पूरा कैरियर निकल जाता है और सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट ही नहीं देखते वो। सो इतना स्ट्रिक्ट उनकी गाइडलाइंस है स्क्रीनिंग की, टेस्ट करने की, कि वहाँ ये कैंसर ही नहीं होता है। तो क्या हम ये कैंसर यहाँ ऐसा कर सकते हैं क्या इंडिया में भी ना हो? डेफिनेटली कर सकते हैं। वहाँ की सरकार जो कर रही है, वहाँ के सिस्टम इंश्योरेंस का जो कर रहा है, वो हम भी तो कर सकते हैं। अगर हमारी महिलाएं साल में एक बार ये टेस्ट करना शुरू कर दें, तो हमें हमारे यहाँ भी 0 हो जाएगा कैंसर। आपको जान के आश्चर्य होगा, सारे एक दिन में, आज का दिन है सपोज, आज 4 फरवरी है, तो एक दिन में लगभग 1000 महिला मर रही है इस कैंसर से हमारे देश में। एंड दिस इज ऑफिशियल रिकॉर्ड। एक्चुअल जो डेथ है वो 2-2.5 हजार होगी पर डे, कि 1000 तो ऑन रिकॉर्ड मर रही है। क्यों मरने दें हम? जब पता है क्यों होता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके बावजूद मर रहे हैं लोग, तो इसका मतलब हम तो बेवकूफ हैं। आजादी के 78 साल हो गए, 78 साल में अगर हम एक प्रिवेंटेबल डिजीज को रोक नहीं पाए, तो मुझे लगता है हमारे देश की जो सक्सेसिव सरकारें हुई है, या हम लोग जो भी समझदार लोग हैं, ये हम सबकी एक हार है। तो अब इस हार को जीत में बदलना है। दिस इज द मोटो ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। आज आप सब मेरे साथ आए हैं, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि आप जागरूकता फैला रहे हैं। और इस जागरूकता को यहीं पे लिमिट ना रखें, एक एक लेडी, 10-10 लेडी को आगे बताएं कि भाई ये मैं आज सीखा है मैंने। अब आते हैं कि ये कैंसर का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये कैंसर होने के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है। एक, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का आपके सर्विक्स तक पहुंचना जरूरी है, और दूसरा, सर्विक्स के ऊपर इंजुरी होना जरूरी है। जब तक सर्विक्स में इंजुरी नहीं होगी, कितना भी वायरस जाए वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता। सर्विक्स पे इंजुरी कैसे होती है? सर्विक्स पे इंजुरी होती है इंटरकोर्स से। जब इंटरकोर्स होता है तो सर्विक्स पे छोटी मोटी इंजुरी होती रहती है। और वायरस कैसे जाता है? वायरस जाता है, हमारे जैसे अंडरगारमेंट साफ नहीं है, हमारी अगर हाइजीन ठीक नहीं है, हमारे हस्बैंड की हाइजीन ठीक नहीं है। तो अगर हाइजीन हमारी ठीक नहीं है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान हम पैड टाइम पे नहीं चेंज करते, हम अच्छे से साफ सफाई नहीं मेंटेन करते, हमारे हस्बैंड अपने अच्छे से साफ सफाई मेंटेन नहीं करते, तो ये गंदगी से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जाता है। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जाने के बाद अगर इंटरकोर्स के टाइम थोड़ी सी भी इंजरी हुई, तो वायरस वहां पे बैठ जाता है जाके इंजरी पे। उसको कहते हैं वायरस का होमिंग इन। वो वहां पे पहुंच जाता है, फिर कैंसर होने का प्रोसेस शुरू होता है। और एक बार ये प्रोसेस होता है तो 10-12 साल इसको लगते हैं कैंसर होने में। तो सबसे पहले हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारा जो भी लेडी है, जिनका सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक्सपोजर नहीं है, या जिनका शादी नहीं हुआ है, उनको सर्विकल कैंसर नहीं हो सकता। ये पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो ना जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे जरूरी, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन अच्छी रहेगी, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन के दौरान। डेली नहाना धोना, अच्छे से प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करना, डेली अंडरगारमेंट्स चेंज होना। अगर पर्सनल हाइजीन ठीक रहेगी तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वहां जाएगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपके हस्बैंड की भी पर्सनल हाइजीन ठीक होनी चाहिए। तीसरी बात, मान लो वो हार्मोन, वो वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किसी तरह चला भी गया हो, तो अगर हम चला भी गया ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो हम कम से कम, जो भी विवाहित महिलाएं, साल में एक बार पेप्समियर का टेस्ट कर लें। अगर पेप्समियर का टेस्ट कर लें, ये कैसे टेस्ट होता है मैं समझाऊंगा, तो ये 5 मिनट के इस टेस्ट में पता चल जाएगा कि कहीं पेपिलोमा वायरस से रिलेटेड कोई चीजें, चेंजेस शुरू तो नहीं हो गए हैं।
थोड़े से भी चेंजेस शुरू होंगे तो पता चल जाएगा, हाँ जी इसको तो होने वाला है जी 4 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद। इमीडिएटली उन चेंजेस का ट्रीटमेंट करा लो, वो चेंजेस वहीं पे खत्म हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे वो, तो हो गया, कैंसर नहीं होगा। सो सिंपल। तो पहला है कि हम प्रिवेंशन के लिए हाइजीन मेंटेन करें, जो मैंने हाइजीन के बारे में बताया हस्बैंड वाइफ का। और दूसरा मैंने बताया कि हम पेप्समियर टेस्ट साल में एक बार करें। एक है वैक्सीन, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीन क्या है कि ह्यूमन पेप्नो वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है। सपोज जिसका जो बच्चियां जिनका विवाह नहीं हुआ और जो सयानी हो गई है, उन बच्चियों में आइडियल कैंडिडेट है वो वैक्सीन के। अगर उनको वैक्सीन लग गई तो वैक्सीन बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडी बना देगी उनकी, और फ्यूचर में कभी ह्यूमन पेप्नो वायरस उनकी बॉडी में घुसा तो घुसते ही वो एंटीबॉडी उसको मार देगी। तो भले ही ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या एचपीवी उनके शरीर में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। तो जैसे ही वायरस जाएगा वायरस मर जाएगा। तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो है वो ये है कि हमारी जो बच्चियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगे। वैक्सीन लग गया तो लफड़ा ही खत्म। सेकेंडरी प्रिवेंशन, नेक्स्ट स्टेप प्रिवेंशन का है हाइजीन मेंटेन करें, हस्बैंड वाइफ दोनों। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना इज वेरी कॉमन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि उसमें वायरस इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अपने संयम से जिए, पति पत्नी के प्रति या पत्नी पति के प्रति, उससे भी प्रिवेंट हो सकता है कैंसर। हाइजीन की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। इसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन ये है कि हम साल में एक बार पेप्समियर करें। शादी हो जाने के बाद से लेके 65-70 साल की उम्र तक हमें ये टेस्ट कर सकते हैं साल में एक बार। अब आप ये समझिए कि पेप्समियर टेस्ट होता क्या है, कैसे करते हैं। एक लेडी लेट जाती है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट आपका एग्जामिन करते हैं, आप सबको एक अनुभव है। आप लेट जाती है एक लाइट के अंदर, गायनेकोलॉजी वेजाना के अंदर एक छोटा सा स्पेकुलम बोलते हैं उसको, एक इंस्ट्रूमेंट डाल के सर्विक्स देखती है अच्छे से। दैट इज कॉल्ड विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स। आंख से देखती है कि सर्विक्स हेल्दी है, अनहेल्दी है, कोई अल्सर तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। वो देखने के बाद सिर्फ एक छोटी सी ब्रश से, एक छोटे से स्पैचुला सा चम्मच सा, उसको अंदर डाल के वहां का पानी टच करके ले लेती है। इट इज एब्सोल्युटली पेनलेस टेस्ट। एक्सपर्ट हैंड्स में इस टेस्ट को करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, बस, दैट्स ऑल। और यूजुअली इस टेस्ट की कॉस्ट 1000, 1200, 1500 रुपया है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है, ट्रस्ट हॉस्पिटल में 200-300 रुपया टेस्ट है। कॉस्टली नहीं है, टाइम नहीं लगता, पेनलेस है, और कैंसर होने के 12 साल पहले बता देता है। इससे सुंदर, सस्ता, टिकाऊ और क्या चीज हो सकती है। फिर भी हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं है और हमारी 1000 महिलाएं डेली मर रही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब कि हम पेप्समियर का टेस्ट कराएं। पेप्समियर का टेस्ट में जब वो पानी लेती है, जब पानी लेके उसको एक स्लाइड होती है, ग्लास स्लाइड, उस पर स्प्रेड कर देती है, जैसे हम बटर को ब्रेड पे स्प्रेड करते हैं, उसी तरह पानी लेके उस पानी को स्लाइड पे स्प्रेड करते हैं, और उस पे पेपानिकलर नाम का, पेप नाम का स्टेन होता है, कलर, वो डालते हैं। फिर उसको ड्राई करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं पैथोलॉजिस्ट, और वो देख के रिपोर्ट देते हैं 1 दिन या 2 दिन बाद कि भाई इसमें ह्यूमन पेपिलो वायरस रिलेटेड चेंजेस होते हैं या प्री कैंसरस चेंजेस कुछ हैं या नहीं। हो सकता है किसी ऑलरेडी कैंसर है, वो भी पता चल जाएगा कि भाई इसको तो कैंसर पड़ा हुआ, पता ही नहीं था। सो इस तरह से हम ये टेस्ट करते हैं, तो हमें कैंसर का जल्दी पता चल जाता है अगर कैंसर है। कैंसर अगर नहीं है तो प्री कैंसर है तो पता चल जाता है। प्री कैंसर नहीं है तो इन्फेक्शन या कुछ ऐसी चीजें जो फ्यूचर में जाके शायद प्री कैंसर या कैंसर बनेगा, उसका पता चल जाता है। इमीडिएटली उसका इलाज ले लें और वो कहानी वहीं की वहीं खत्म, सर्वाइकल कैंसर होगा ही नहीं। तो ये 3 लेवल के जो प्रिवेंशन बताए, ये 3 लेवल के प्रिवेंशन करने से ये कैंसर किसी को भी नहीं होगा। तो इन 3 लेवल में से आज जो हम कैंप कर रहे हैं, एक लेवल कर रहे हैं जिसमें हम पेप्समियर टेस्ट कर रहे हैं। एचपीवी टेस्ट भी होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टेस्ट भी करते हैं पेप्समियर करने के टाइम उस पे। मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि वो नेक्स्ट है, किसी को अगर दिक्कत लगती है तो उसमें फर्दर टेस्ट करते हैं, बट सिंपल मास स्क्रीनिंग के लिए सिंपल कन्वेंशनल पेप्समियर इज सफिशिएंट। एक लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी बोलते हैं, वो भी होता है, लिक्विड के अंदर सैंपल ले लेते हैं। सो ये सब बेसिकली प्रिवेंशन स्क्रीनिंग के टेस्ट है। तो पहला चीज जो मैंने आपको आज सिखाया वो ये है कि सर्विक्स क्या होता है। दूसरा मैंने सिखाया सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है।
इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या है। चौथा मैंने ये बताया कि सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, फ्रॉम वैक्सीन अप टू पेप्समियर, इंक्लूडिंग आवर हाइजीन। और इन सारी चीजों को जानने के बाद सार ये है कि हमें इन चीजों के बारे में सबको जागरूक करना है, अवेयर करना है, सबको बताना है कि भाई ये चीज ऐसे होती है, ऐसे करने से बच सकते हैं। इतना बड़ा कैंसर डेली 1000 लोग से ज्यादा लोगों को मार रहा है, तो इतनी सी चीजें अगर हम सब महिलाएं मिलके कर लें तो क्यों नहीं हो सकता। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक संप्रदाय है, सिख संप्रदाय, सरदार लोग। सरदार कभी सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाता, कोई भी सरदार। ये उनके धर्म के अनुसार जरूरी है, मैंडेटरी की नहीं खाना है। कोई भी सरदार सिगरेट नहीं पीता, कोई भी सरदार तंबाकू नहीं खाता। एक आधा एक्सेप्शन हो तो अलग बात है। तो वो भी छोटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी हमारी तरह। हम कम से कम क्यों ना अपने ही समाज में, पूरा देश का मान लो ना कर पाए, कम से कम अपने ही छोटी कम्युनिटी, वी आर वेल कनेक्टेड। जितने हम दिगंबरी हो, श्वेतांबरी हो, भले ही हम मंदिर मार्गी हो, स्थानक वासी हो, जो भी है तो नौकार मंत्र के अंदर ही सब महावीर स्वामी को जानते हैं। तो हम अपनी ही कम्युनिटी के अंदर सारे महिलाओं का ग्रुप बना के पूरे देश में कर दे कि भाई और कम्युनिटी क्या करे क्या ना, कम से कम चैरिटी बिगिंस एट होम। कम से कम अपने ही समाज के अंदर हम ये मैंडेटरी कर देंगे, भाई हम सिस्टम कर लेंगे कि हमारी जितनी बच्चियां हैं उन सबको हम कैंप लगाओ, कुछ भी करो, सबको वैक्सीनेट कर देंगे। एट द सेम टाइम जितनी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है उनको वैक्सीन का साइड इफेक्ट इतना अच्छा ना हो, उन सबका साल में पेप्समेयर करना शुरू करें। और सिंपल टेस्ट है, महंगा टेस्ट नहीं है। साल भर में आदत बन जाएगी कि भाई एक साल में जैसे पिकनिक जाते हैं, बड़े आराम से जाते हैं, साल में पिकनिक जाते हैं, घूमने जाते हैं, 5 मिनट के लिए एक टेस्ट करा लो। आदत डाल दो हर लेडीज को ये करने का। तो हमारे समाज में कम से कम सर उठा के हम चलेंगे, देखो भाई साहब ये समाज है देश का जिस समाज में सर्वाइकल कैंसर 0 है। अगर हम ये अचीव कर पाए तो आज का हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। क्योंकि एक बार वो सर्वाइकल कैंसर हो गया तो फिर अलग अलग स्टेज होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4, अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। कुछ लोग ठीक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। स्टेज 1 पे अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो 85 to 90% लोग ठीक होते हैं। स्टेज 2 पे करते हैं तो 65% ठीक होते हैं। स्टेज 3 पे जाएं तो तकरीबन 40-45% लोग ठीक होते हैं। स्टेज 4 पे 10-15% लोग ठीक होते हैं। हम उस परसेंटेज में जाए क्यों, हमें चाहिए 0% डेथ, 0% कैंसर, 100% क्योर, 100% डिटेक्शन। अब मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, क्या आप मेरी ये बात समझें और क्या आप तैयार हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। कम से कम एक आदमी जो करने रहे वो तो हाँ बोल दे, ताकि मैं समझूंगा कि सबकी हाँ है। Yes, इसका भी ठीक है। all are ready. सर यस सर, जी तो लेडीज विंग पूरी तरह से ही तैयार है इसके लिए। मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ इतना ही काम करना है। बच्चियों का वैक्सीनेशन कराना है, जिनकी शादी होगी उनका पेप्समियर कराना है, और साल में मेरे जैसे गधे को बुला के एक आधा लेक्चर कराना है। दैट्स ऑल। इतना हम कर सकते हैं तो ये बीमारी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं है इसमें। हेलो, जी मेरी डॉक्टर, आवाज आ? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ अच्छा, अब ये मैंने बेसिक एक इंट्रोडक्शन चीजों का दिया जो आपको सबको जानना बहुत जरूरी है। अब आप मेरे से क्वेश्चन आंसर करें, आई थिंक दैट इज अ बेटर थिंग, कि हर चीजें क्लियर हो जाए। मैं तो बोलते रहूंगा, मैं तो एक्सपर्ट हूं, मैं तो सारा दिन बोलता रहूंगा, कोई अंत नहीं है। आप लोग पूछे, मैं आपका अनदर 15-20 मिनट्स जो भी टाइम है हम क्वेश्चन आंसर कर लें, ताकि सबके डाउट्स दूर हो जाए, मिथ्स दूर हो जाए। आई थिंक द रचना जी, हाउस इज यू टेक ओपन फॉर फॉरवर्ड द क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन। सेक्शन। रचना जी, यस, क्वेश्चन आंसर्स यहाँ। प्लीज स्टार्ट क्वेश्चन। कोई एक मतलब मॉडरेट कर लें क्वेश्चंस को। हाँ प्रोफेसर अक्षर जैनेन्द्र, यस, नीता मेहता, बहुत अच्छा रहा आपका सारा बात समझ के। नॉलेज तो गेन होता ही है, और सबसे अच्छी बात है ये हमें मिल के लड़ना है जरूर, ये भी बात सही है। आई एम ऑल्सो एग्री। और एक खाली क्वेश्चन था जो अभी जेनेटिक है, एक आप उसके बारे में बताएं, और एक है जो हिस्टेक्टोमी हो चुका है जिनको, उनके लिए सर्विस कैंसर का वैक्सीन मतलब ये टेस्टिंग या प्रिकॉशन क्या है, क्योंकि 20 ईयर्स हो गए हिस्टेक्टोमी को बहुत जन को,
40-45 में भी हो गए, अभी 60-65 के हैं, तो उनके लिए आप क्या प्रिकॉशंस बताएंगे? हिस्टेरेक्टोमी जिनकी हो चुकी है उनका सर्विक्स नहीं है, उनकी सर्विक्स तो निकल चुकी है, लेकिन हाँ। उनका वेजाइना का जो अपर पार्ट है जिसको हम कहते हैं वेजाइनल वॉल्ट, तो उस वेजाइना के वॉल्ट में भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से कैंसर हो सकता है। तो इसलिए उसको हम पेप स्मीयर नहीं बोलते, उस सर्वाइकल स्मीयर को हम बोलते हैं वॉल्ट स्मीयर। सेम टेस्ट है, सेम तरीका है, सेम इंडिकेशन है और सेम फायदा है। तो जिनका हिस्टेरेक्टोमी हो चुका है उनको भी वॉल्ट स्मीयर लेना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से वहां भी वॉल्ट में कैंसर हो सकता है। हाँ, तो राइट द मैसेज, वो आप स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं हो, आप जो वैक्सीन बोल रहे मतलब टेस्टिंग बोल रहे हैं, आप मैसेज भी वो करते सेम हैं। ही है, दैट इज पेप स्मीयर की तरह ही है, जैसे पेप ओके स्मीयर का जाइए वॉल्ट स्मीयर करा, नाम चेंज जैसे वॉल्ट स्मीयर करना चाहिए। ओके ओके। ईयरली? साल में एक बार ओके, आफ्टर। थैंक यू। जैसे आजकल नूरा टेस्टिंग आ गया, स्कैनिंग होती है पूरी, उससे भी कैंसर का पूरा डिटेल्स बता देते, जेनेटिक अगर है तो वो भी कराना चाहिए क्या ईयरली? आपको अगर आइडिया हो थोड़ा ये बहुत। स्क्रीनिंग के लिए अप्रूव टेस्ट नहीं है, ओके इट इज मोर ऑफ मार्केटिंग इंटरेस्ट। ओके तो अप्रूव टेस्ट जो WHO के अनुसार या ऑन्कोलॉजी सोसाइटी के अनुसार अप्रूव्ड है, उसमें टेस्ट सर्वाइकल कैंसर के लिए पेप स्मीयर ही है, HPV टेस्टिंग है, नोरा टेस्ट नहीं है। वो देव स्टार्टेड डूइंग रिसर्च है, कुछ कर रहे हैं, बट वो रिकमेंडेड नहीं है मास के लिए, सबके लिए नहीं है। ओके। और जेनेटिक अगर हो तो, जैसे किसी किसी के मेनोपॉज हो गया है और 7 इयर्स 8 इयर्स के बाद में स्पॉटिंग होती है कुछ भी, तो फिर वो डिटेक्ट होता है, तो उस समय तो अपने वैक्सीन वगैरह को तो कुछ चांसेस नहीं है, और उनकी बेटियां और जो भी होती है वो बड़ी हो चुकी होती है, तो उनके लिए प्रिकॉशंस क्या है? देखिए, मोनोपोज के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, सर्विस के ऊपर जो यूट्रस होता है उसका कैंसर है। पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग में कॉमनेस्ट कॉज यही है, एंडोमेट्रियल कैंसर। तो इमीडिएटली उसकी जांच कराएं और एंडोमेट्रियल कैंसर की जांच करा के ट्रीटमेंट करें, पहली बात ये। तो इसका रीजन क्या होता है फिर? नहीं, एंडोमेट्रियल कैंसर का रीजन कुछ और है। एंडोमेट्रियल कैंसर जनरली उन लोगों में होता है जो मोटे होते हैं, जिनको डायबिटीज होते हैं, जो चलते फिरते नहीं है, तो जिसकी लाइफस्टाइल गड़बड़ है ना, ज्यादा टिकड़ा खाते हैं, जो घी वाला ओके फैट वाला, उनको ज्यादा होता है। तो उसका प्रिवेंशन का तरीका लाइफस्टाइल ठीक करो। ओके। और जेनेटिक भी हो सकता है? जेनेटिक कैंसर इतना कॉमन सर्वाइकल कैंसर जेनेटिक नहीं है। सर्वाइकल कैंसर की जहां तक बात है, ये बेसिकली वायरस की वजह से ज्यादा होता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, ये ज्यादा जेनेटिक कैंसर में आते हैं। सर्वाइकल हाँ कैंसर की बात करें तो ये मोस्टली वायरस से होता है। ओके। ओवेरियन कैंसर ही देखा गया है ज्यादा। हाँ ब्रेस्ट ओवेरियन जेनेटिक बहुत ज्यादा होता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, कुछ लेडीज की इंक्वायरी ये भी है कि जो वैक्सीन जो बच्चों को लगाते हैं उनकी लाइफ क्या है, मतलब शादी अगर लेट होती है तो भी इफेक्टिव रहेगा, देखो, और किस एज में लगाना चाहिए? मैं दो बातें आपको बताता हूँ। हम्म। वैक्सीन, आप कोई भी बच्ची सियानी होती है ना 12-13 साल की, हाँ। उसके बाद आप लगा सकते हैं कभी भी, पहली बात। कोई उसमें वो नहीं है कि नहीं लगा सकते, जब भी 12-13 साल के बाद बच्ची को लगा सकते हैं, पहली बात। ओके। मोस्ट इफेक्टिव तब होता है जब शादी के पहले आप वैक्सीन लगा दें। ओके। शादी के बाद भी वैक्सीन लगा सकते हैं, शादी के 1 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन उसमें क्या कि एक्सपोजर ऑलरेडी हो गया है, हो सकता है वायरस ऑलरेडी चला गया अंदर, सर्वाइकल इंजरी ऑलरेडी हो चुकी हो, तो उसमें जो प्रोटेक्शन है वो 100% नहीं है। प्रोटेक्ट तो करेगा, लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी इफेक्टिव एक अनमेरिड गर्ल में होगी। अच्छा, तो मतलब यस, मैरिड भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव ज्यादा है अनमेरिड में। मैंने अपने वो पोती को लगवाया है, हाँ 13 की है वो। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक सर, बहुतों की इंक्वायरी है कि मेल के लिए भी है क्या, मतलब बच्चों के लिए, मेल बच्चे बॉयज के लिए भी है वैक्सीन? ये सर्वाइकल कैंसर की जो HPV वैक्सीन है, ये HPV वैक्सीन वेस्टर्न कंट्रीज में मेल भी लगाते हैं, क्योंकि मेल के कुछ कैंसर है, पेनिस के कैंसर जैसे हो गए, एनल कैनल के कैंसर हो गए, कुछ कैंसर मुंह में भी होते हैं, वो भी HPV वायरस से होते हैं, तो उनको प्रिवेंट किया जा सकता है।
हमारे देश के अंदर होमोसेक्सुअलिटी वगैरह बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए एनल कैंसर पेनल कैंसर की मात्रा कम है कंपैरेटिवली। ओके इसलिए हमारे देश में जो एचपीवी रिलेटेड डिजीजेज है, कैंसर एंड नॉन कैंसर, मेल्स में कम है, बिकॉज हमारी संस्कृति कुछ ऐसी है। बट इफ यू गो टू अमेरिकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, जहाँ पे मेल टू मेल सेक्सुअल बिहेवियर बहुत कॉमन है, तो वहां पे तो वो लगाते ही हैं, मेल भी लगाते हैं। सर, कुछ मदर्स मतलब इसके अवेयरनेस के बाद बोल रहे हैं, जैसे 12 इयर्स ओल्ड है, मैच्योरेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, पर वैक्सीन लगा सकते हैं क्या? 13 में लगाओ, 14 में लगाओ, जब 18 के भी पहले साथ। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि भाई लंबा टाइम उसका इफेक्ट रहे, इसलिए जब शादी होने का एज आता है उसके साल भर पहले लगा लो, ओके तो लंबा टाइम आगे खींचेगा। जनरली वो 20-25 साल तक का कवर तो देता ही है वैक्सीन, तो शादी के पहले पहले लगा लो, जब एक्सपोजर होता है उसके पहले पहले, तो लंबा टाइम अपना प्रोटेक्शन रहेगा। आप हैंड रेज कराएं, वो सरिता जैन है, उनको ले ले। वो कह रही है हैड ए कैंसर क्योर बट आस्क द क्वेश्चन सम्स। ओके हाँ, सरिता जैन, हैंड रेज करें प्लीज। आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हैंड रेज कर ले सबका, तो आप हैंड रेज के हिसाब से लेते रहे ना रचना जी। अब जिनके जिनके हैंड रेज है उनको आप लेते रहो ना, कंटिन्यू। हाँ, सरिता जैन आ गई। हाँ। हाँ, सर मेरे को पूछना था कि आज से 4 साल पहले मेरे को कैंसर, यूट्रस कैंसर हुआ था। इट वाज हैड कंप्लीटेड सेकंड स्टेज टू थर्ड स्टेज। फिर मेरा ऑपरेशन हो गया। आई हैड माय कीमो एंड माय रेडिएशन। इज देयर एनी अगेन चांस कि कैन आई गेट द कैंसर अगेन? ऐसा कुछ होता है? कोई भी कैंसर वापस होने के चांस रहते हैं। हम्म। जब आपको कैंसर हुआ था उस टाइम कौन सी स्टेज का कैंसर था? सेकंड कंप्लीट हो गया था, थर्ड टच किया था। लिसन टू या जब भी कैंसर होता है, आपकी कौन सी स्टेज का कैंसर था और कितना एडिक्वेटली अच्छे से आपका ट्रीटमेंट हुआ, उस पर डिपेंड करता है कि आपके रिकरेंस के चांस कितने हैं। 2%, 3%, 5%, 10%, ऐसे चांसेस होते हैं, वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज एंड ट्रीटमेंट। तो रिकरेंस कैंसर में हो सकता है, गारंटी नहीं कि होगा ही, बट कुछ परसेंट चांस रहते हैं। कोई प्रिकॉशन जो ले सकते हैं इसके लिए? यस, एवरी 3 मंथली अपने डॉक्टर को चेक कराएं। वो मेरा चेकअप होता है। और बस any that other is the best. precaution? That is the best way. That is the best way That is the to best way. to prevent and to detect early recurrence. Thank you, Doctor, very much. प्रमीला जी जैन, प्रमीला जी आप पूछिए आपका सवाल। हाँ, वो आएंगे ना माल उसमें रॉकेट उधर हेलो। जा रहा है। हेलो हेलो। प्रमीला जी। नमस्ते, जय जिनेंद्र to one and all. Hello. Am I audible? Yes, you're audible. डॉक्टर साहब, I just wanted to know कि periods के कितने दिन के बाद you can get it vaccinated या tested? पहली बात। दूसरी बात, जितना अवेयरनेस सर्वाइकल कैंसर के लिए हो रहा है, इट्स अनफॉर्चुनेट टू से कि ब्रेस्ट कैंसर भी डायबिटीज जैसे कॉमन होता जा रहा है, तो उसके रिलेटेड क्या अवेयरनेस, क्या टेस्टिंग्स, और बाकी कैंसर भी के लिए भी क्या टेस्टिंग्स या क्या अवेयरनेस हमें रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जनरल? तो कैन आई नो दैट आल्सो? वाज माय क्वेश्चन क्लियर? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। पहला तो ये आपका क्वेश्चन था कि मेंस्ट्रुएशन के कितने दिन बाद हम टेस्ट करा सकते हैं ड्यूरिंग। टेस्ट या वैक्सीन, कुछ भी। दो अलग अलग चीजें। जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है उसके दौरान अच्छे से सैंपलिंग हो नहीं पाती, इसलिए मेंस्ट्रुएशन जब खत्म हो जाए उसके 5वें दिन या उसके बाद हम कर सकते हैं, पहली बात। ओके डॉक्टर साहब। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन आइडियली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ना लें तो अच्छा है। मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी ले सकते हैं, पर बेटर है कि उसके बाद लें। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर का ज्यादा स्क्रीनिंग और ज्यादा प्रचार क्यों है? इसलिए कि प्रिवेंटेबल है। ब्रेस्ट कैंसर उतना प्रिवेंटेबल नहीं है जितना सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का कारण पता है एचपीवी,
ब्रेस्ट कैंसर का कारण नहीं पता है। यस यस ब्रेस्ट कैंसर का हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। देखो आप चीज में मतलब फर्क समझो, एक है प्रिवेंशन, एक है अर्ली डिटेक्शन। ओके कैंसर होने से रोक देना उसको प्रिवेंशन कहते हैं, जो सर्विक्स में पॉसिबल है। ब्रेस्ट कैंसर होने से हम रोक नहीं सकते, ब्रेस्ट कैंसर को हम अर्लीस्ट पॉसिबल डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या आइडियल एज है व्हेन यू हैव टू गेट इट coming to it. टेस्टेड? Now, अब कब करें, क्या करें? ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्शन करने के लिए 40 की उम्र के बाद हर महिला को साल में एक बार मेमोग्राफी करनी चाहिए, दोनों ब्रेस्ट की। वो भी 1000, 1200, 1500 का टेस्ट है, कोई 10 मिनट लगता है टेस्ट में, इजी टेस्ट है, आराम से जाएं करा के आ जाएं। नाउ मेमोग्राफी का फायदा ये है कि या तो अर्ली स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, या कुछ ऐसी ऐसी चीजें डिटेक्ट हो जाती है कि गांठ बनने के 3 साल पहले पता चल जाता है। जनरली ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट में गांठ बनती है, लंप होता है, और तब वो डॉक्टर को दिखाती है, टेस्ट कराती है। लेकिन लंप बनने के 3 साल पहले मेमोग्राफी बता देती है कि भी इसको लंप बनने वाला है। तो इसलिए मेमोग्राफी साल में एक बार 40 वर्ष की आयु के बाद करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर महिला को महीने में एक दिन, संडे या कोई एक दिन फिक्स कर लो, उस दिन नहाते समय बाथरूम में कमरा बंद करके मिरर के सामने अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करना चाहिए। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, आप सब सीख लें कैसे होता है। आप चाहते हैं तो एक दिन अलग सेशन रख के मैं सबको ऑनलाइन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का टेक्निक सिखा दूंगा। तो सारी महिलाओं को महीने में एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। 40 की आयु के बाद सब महिला को साल में एक मेमोग्राफी करनी है, तो ब्रेस्ट कैंसर से भी बच गए। अब आप सोचो, ब्रेस्ट कैंसर से बच गए, सर्वाइकल कैंसर से बच गए, तो हमारे 70% कैंसर तो महिलाओं का ऐसे ही खत्म हो गया। यस फिर भी मर रहे हैं, फिर भी मर रहे हैं, है ना। तो दिस इज द प्लेजर ऑफ पॉइजन। जान के ही हम मर रहे हैं, तो क्यों ये जानकारी सबको ना दें और ये सब काम करें, ठीक है ना। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। यस थैंक यू सो मच सर। प्रियंका जी नाटा। डॉक्टर साहब एक सेकेंड डॉक्टर साहब, अगर मेमोग्राफी सेफ है, क्योंकि रेज बहुत होता है ना, डायरेक्ट रेज है। देखिए ऐसा है कि मेमोग्राफी जो है, इसके फॉर एंड अगेंस्ट काफी डिस्कशन हुआ है, काफी रिसर्च है, सब कुछ है। एक तो हम 40 साल तक कर ही नहीं रहे मेमोग्राफी, 40 के पहले करते नहीं है, 40 के बाद ही कर रहे हैं। और जनरली हम 40 के बाद साल में एक बार जब मेमोग्राफी करते हैं, उसमें रेडिएशन बहुत मिनिमम जाता है। करना कब तक है? 60-65 तक की एज तक करना है, इसके बाद जरूरत नहीं होती। तो ये 20-25 साल में ईयरली एक बार मेमोग्राम करे तो इतना रेडिएशन नहीं जाता कि उससे कैंसर हो जाएगा या बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। थ्योरेटिकल नुकसान है, बट प्रैक्टिकल इतना नुकसान देखा नहीं है। इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि साल में एक बार 40 से 65 के बीच कर लेना चाहिए। ओके अगर नहीं फैसिलिटी अवेलेबल है, दिक्कत है, तो कम से कम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो। वो तो अपने हाथ से कर ही सकते हैं ना। प्रियंका जी नाटा। जय जिनेंद्र डॉक्टर, इट वाज अ नाइस सेशन। मेरा क्वेश्चन ये था कि वैक्सीन कौन सी कंपनी के लिए एंड हाउ मेनी डोजेस आर एडवाइजेबल? देखिए वैक्सीन 2 कंपनी की अभी अवेलेबल है, वन इज गार्डासिल एंड वन इज सर्वेरिक्स। दोनों इक्वली इफेक्टिव है, आप कोई भी ले सकते हैं। डोज डिपेंड करते हैं किस एज पे ली जा रही है और पेशेंट मैरिड है, एक्सपोज है, नहीं है। तो जनरली 2 डोज होती है या 3 डोज होती है, ऐसी होती है। और एक बात मैं बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को रिसेंटली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड करने का मतलब है कि हमारी देश में वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, बनाना शुरू हो गया है, तो वो बहुत जल्दी मार्केट में आ रही है। और गवर्नमेंट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर फ्री भी देगी। अभी वैक्सीन करीबन 3-3.5 हजार की कीमत है। मान लो 3 भी डोज लगानी पड़ी तो 10-12 हजार रुपये खर्चा है। महीने 2 महीने वेट कर लीजिए, इंडियन ब्रांडेड वैक्सीन जो गवर्नमेंट अंडर प्रोग्राम लाएगी वो 2000 से मेरे ख्याल से 250-300 रुपए की हो जाएगी। और जो एलिजिबल है अंडर दिस इम्यूनाइजेशन, जैसे पोलियो,
BCG, ये सारे बच्चों को DPT वगैरह लगाते हैं, टिटनस का, जो सब बच्चे लगाते हैं, तो उस प्रोग्राम में आ जाएगी तो फ्री ही मिलेगी। तो फ्री मिले तो करें, ना मिले तो करें, हमें करना है, क्योंकि इसको जड़ से भगाना है। भगाना। पर गार्डासिल का ही ज्यादा फेमस हो रखा है ना, गार्डासिल ही लेते हैं सब। वो क्या डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है? कोई भी ले सकते हो। कोई भी। ओके, थैंक काजल जी अपने आप को म्यूट करके क्वेश्चन पूछिए आपका। I think so. She's not able to. Shashi ji Sethia. Yes, जय जिनेंद्र टू ऑल। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आज ही मैंने ये अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के अंडर में टेस्टिंग कराई है। टेस्टिंग कराते वक्त मेरे को मेरा लास्ट ईयर हिस्टेरोटॉमी ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन टेस्टिंग कराते वक्त मेरे को थोड़ा सा उसमें ब्लड आया, तो ये कोई चिंता की बात तो नहीं है? जनरली नहीं है। ना। हेलो। Not to worry. Okay, sir. Thank you. Very good afternoon, Doctor. Kajal Jain here. Am I audible? Yes, Yes. you are audible. Sir, that's it. Like actually, I had been to gynecologist and मेरी बेटी के लिए उन्होंने ये recommend किया था vaccine, but they had a list of vaccine named there, which made me confusion. Initially, when they explained me about the vaccine, मैंने अपना दिमाग में सेट कर दिया हाँ बेटी को दिलवाना है, बट जब वो ऑप्शन दे ना आपको 4,000 का दिलवाना, आपको 8,000 का दिलवाना, आपको 11,000 का दिलवाना, इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ मनी मेकिंग बिजनेस काइंड। सो वो देख के और वो सोच के मैं वहां से आ गई है। सो वी वांट मोर क्लैरिटी कि बेबी गार्डासिल में भी है तो उसमें 9 टाइप ऑफ वायरस कैन बी कवर्ड, या अभी कुछ और नया भी है जिसमें 11 टाइप्स ऑफ वायरस हैव बीन कवर्ड, सो व्हिच इज द लेटेस्ट वन एंड टू बी ऑन द सेफर साइड लड़कियों के लिए। सो प्लीज इफ यू कैन टेक्स्ट अस इन दिस ग्रुप, इट विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस डॉक्टर। मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। यस डॉक्टर। जो वायरस होते हैं ना HPV, उसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं, टाइप 11, टाइप 14, टाइप 16, टाइप 18, अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए जो हाई रिस्क टाइप है टाइप 14, टाइप 16, तो हमें जो वैक्सीन लेना है वो वैक्सीन नहीं लेना है जिस वैक्सीन से एनोजेनाइटल वार्ट प्रिवेंट होता है। हमें वो वैक्सीन लेना है जिससे सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट होता है। तो बहुत सारे टाइप्स के जिसमें कवर होता है वो लेके फायदा नहीं है। पहली बात, माई लास्ट आंसर हैज कवर्ड एक्चुअली द आंसर। मैंने कहा ना 2 महीने वेट करिए। इंडिया में जो वायरस प्रिविलेंट है सर्वाइकल कैंसर करता है, वही वायरस लेके इंडिया की वैक्सीन बन रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा वेट करके वो वैक्सीन लगाएं जो हमारे देश में बनेगी और बहुत अच्छी क्वालिटी की बन रही है। तो उसमें सिर्फ वही 3 टाइप्स ऑफ वायरस कवर्ड है जो एक्चुअली हमें चाहिए। हमें 11 टाइप और 9 टाइप का लेके कोई फायदा नहीं है। कुछ डिजीजेस इंडिया में है ही नहीं, इतनी रेयर है, तो उनकी वैक्सीन लेके क्या फायदा। Thank you so much. In that case, I would request all the leaders of Jito Ladies Wing here कि एक बार हम लोग डॉक्टर से सेशन ले after 2-3 months, as soon as the vaccine is being like introduced, हमें updates मिले so that we can get used to it, sir. क्योंकि जब introduce होगी तो हमें पता भी नहीं होगा कितनी बार सब ladies को, तो एक बार जीतो लेडीज टीम की तरफ से अगर इंटीमेशन आता है, बनना शुरू हो गई है, बट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आ जाए ना तो अच्छा है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट जब रोल आउट करेगी ना चीजें अपने प्रोग्राम के अंदर, आफ्टर 2-3 मंथ्स अगर इंटीमेट करते हो तो एक बार और सेशन इट इज एक्सपेक्टेड इन फर्स्ट वीक ऑफ मे। Okay, fine. Thank you so much. तो I request all the leaders of जीतो लेडीज विंग कि एक बार अपन मई मंथ में और डॉक्टर से एक बार और सेशन लेके अपन और इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेके we can go ahead with it. Thank you so much, sir. Any other question? और किसी को कुछ पूछना है, किसी के डाउट हो, कुछ जो भी क्लियर नहीं है तो हम पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। Yes, ma'am. आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। Even I want to ask a question. Can I go ahead? Yes, you can. Yes, I am Shilpa Raka and I am a psycho-oncologist.
So good afternoon all. My question to the doctor is कि जब भी ovarian cancer detect होता है and a person is cured, so are there any chances of getting a second time cancer to the female reproductive or the any specific organs which it can get metastasis after the first cancer is cured? लाइक ओवरियन का हो गया है, यूट्रस हिस्टेक्टोमी से निकल गया है, बट आर देयर एनी चांसेस टू गेट इट द सेकंड टाइम कैंसर व्हेन इट हैपेंस? Will it get in the breast or any other part of the body, and how to get that, or how we can catch that cancer? Because CA 125 what we are ruling for ovarian, that is only the markup for ovarian cancer. So can you just brief on that कि कौन से organ में it can develop after an ovarian cancer? देखिए, इस क्वेश्चन का पार्शियल आंसर मैं पहले कर चुका हूं कि कोई भी कैंसर होता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके बाद भी रिकरेंस के चांस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज एट इट वाज डायग्नोज्ड एंड द ट्रीटमेंट, चांसेस कैंसर के होते हैं वापस। तो ओवरी कैंसर कैन रिकर एनीवेयर इन द बॉडी। ओवरी तो निकल चुकी है, बट वो कैंसर रिकरेंस आपके लिवर में हो सकता है, लंग में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। दैट इज वन। ओवेरियन कैंसर जिस कारण से होता है, मोस्टली एस्ट्रोजन रिलेटेड कैंसर है, और BRCA1 BRCA2 जीन रिलेटेड कैंसर है। सिमिलर कैंसर ब्रेस्ट भी है। तो जो ओवेरियन कैंसर के फॉलोअप के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? सो एक तो ओवेरियन कैंसर खुद रिकर हो सकता है, और दूसरा उस पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर भी फ्यूचर में हो सकता है। तो इसलिए व्हेन वी ट्रीट एनी पेशेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, हम उनका जेनेटिक टेस्ट भी कराते हैं, उससे असेसमेंट करते हैं, पहले उसकी फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं कि परिवार में किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, सेकेंड डिग्री रिलेटिव को किसी को हुआ है नहीं हुआ है। तो वी टेक फैमिली हिस्ट्री, वी डू जेनेटिक टेस्ट, डिपेंडिंग ऑन दैट हम एसेस कर सकते हैं कि भाई इनकी रिस्क कितनी है ब्रेस्ट में कैंसर होने की ओवरी कैंसर के बाद। सो हो सकता है दूसरे ऑर्गन में भी हो सकता है, और जब रिकरेंस होता है तो रिकरेंस कोई भी कैंसर जब रिकर करता है बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कहीं भी कर सकता है। सर हम लोग और कितने क्वेश्चंस ले सकते हैं? एक ले लीजिए। ओके, वन फाइनल क्वेश्चन। रचना जी, recognize one person and let her ask the question. सर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैं इसमें मैसेज। sir. रेणुका, Sir, good afternoon. Am I audible? yes, you are audible. Yes, sir. Sir, actually, I have 3 questions, but very short questions. One is कि मेरे mother-in-law को stomach cancer diagnosed हुआ था, and unfortunately, within 4 months, we lost her. And doctors asked, gave us the samples, जो biopsy या कुछ किया होगा, तो उनके samples हमको दिए थे preserve करके रखने के लिए. And they asked all the children of the mother-in-law to have a test for that. So is it necessary? मैंने सबको बोला है करने के लिए, but कोई मान नहीं रहा है करने के लिए, because they are getting scared कि क्यों करना है, जब होगा तब देखेंगे, अभी से क्यों टेंशन लेनी है. So can you guide me in that? And my second question is कि breast cancer का age कुछ होता है क्या? Because मेरी 2 cousins है, immediately after delivery within 6 months उनको breast cancer diagnosed हुआ, and among them also I lost one of them, and एक का क्योर होके उनको फिर से कैंसर हुआ है दूसरे कोई चीज का. तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें स्क्रीनिंग 40 के बाद ही करना चाहिए या कि हमें उसके पहले भी करते रहना चाहिए, बिकॉज फैमिली में 2 लोगों को बिफोर 40 हो चुका है ब्रेस्ट कैंसर. एंड माय थर्ड क्वेश्चन इज कि कॉपर टी हम लोग भूल जाऊंगा करते हैं. जब तक थर्ड क्वेश्चन आप पूछेंगे, एक बार प्लीज ब्रेक लीजिए, डॉक्टर साहब को आई जवाब विल देने आंसर दीजिए. ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, बट एक एक करके पूछेंगे. सॉरी सर.
माय थर्ड क्वेश्चन इज कि हम लोग अगेन फैमिली प्लानिंग के हिसाब से कॉपर टी यूज करते हैं, बट मेरे कुछ होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि डोंट यूज इट, कि उसकी वजह से भी सर्विकल कैंसर या फिर अंदर इन्फेक्शन हो सकता है या फिर ऐसे ब्लाबला चीजें। तो वी आर वेरी कंफ्यूज कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट। So please guide in that also, कि whether we should use copper tea or not, or just directly do family planning or other things which are there available. Thank कॉपर you, टी, sir. आई स्टार्ट फ्रॉम रिवर्स। थर्ड Okay. क्वेश्चन तो मुझे याद है अभी तक आपका। Yeah. जो जो कॉपर टी है उससे सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। Okay. ठीक है, कॉपर टी आराम से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या था, मुझे फिर बताइए प्लीज, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आ गए। तो नहीं, वो सर आप ब्रेस्ट कैंसर का आपने एज बोला था ना कि एज, आफ्टर हाँ 40 दैट्स अ वेरी स्कैनिंग। गुड क्वेश्चन। यस, हाँ, ब्रेस्ट कैंसर का यूजुअल लेडीज को 40 के बाद साल में एक बार टेस्ट कराना है। राइट। किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर अगर बहुत कॉमन है, 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को हुआ है, दैट फैमिली इज कॉल्ड हाई रिस्क फैमिली। उस हाई रिस्क फैमिली में 2 काम करने। पहला कि सबको BRCA1 और BRCA2 जेनेटिक टेस्ट होता है, कराना चाहिए। आई एम टॉकिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवरी कैंसर। इन दोनों कैंसर अगर किसी फैमिली में ज्यादा प्रेवलेंट है तो उनको BRCA1 BRCA2 टेस्ट कराना चाहिए। वो बाकी जितने लोग उसके रिश्तेदार कराएंगे ना, जो ब्लड रिलेटेड रिलेशन है, एकदम क्लोज, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बोलते हैं, उनमें से जिनमें जिनमें वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा वो हाई रिस्क है, बाकी सब नॉर्मल है। तो बाकी सब तो चिंता मुक्त हो गए। अगर किसी का पॉजिटिव आया हाई रिस्क है तो उसको हाई रिस्क के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, वो करके उसको वैसे बचा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जिनके हाई रिस्क फैमिली है, उन हाई रिस्क फैमिली में जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, वो स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे कम एज में किसको हुआ है पता करो। इसके 30 साल में हुआ है, 35 साल में हुआ है, 40 साल में हुआ है, तो उसके 10 साल पीछे जाएं। सपोज किसी को हो गया 38 की एज में, एक परिवार में बहुत लोगों का यंगेस्ट वाज 38, तो 10 साल पीछे जाए हो गया 28, तो उसके परिवार में जो स्क्रीनिंग लड़कियों की 28 से ही शुरू हो जाएगी, 40 से नहीं होगी। ठीक है, और जो 28 से शुरू होगी लेकिन 40 तक मेमोग्राफी नहीं कर सकते, तो 28 से 40 तक अल्ट्रासाउंड करेंगे ब्रेस्ट का उनका एवरी ईयर। यस, 28 से 40 तक अल्ट्रासाउंड करेंगे, 40 के बाद फिर मेमोग्राफी करेंगे। लेकिन 40 से अंडर स्क्रीनिंग सिर्फ उन लोगों का होगा जिनकी हाई रिस्क फैमिली है। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मदर इन लॉ को स्टमक कैंसर हुआ, उससे बहुत जल्दी गुजर गई, आई एम सॉरी टू हियर दैट, और बोला कि आप लोग सब लोग टेस्ट कराओ। अगर मदर इन लॉ को स्टमक कैंसर हुआ और पूरे परिवार में उनके ब्लड रिलेशन में कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, तो फिर कोई टेस्ट कराने की किसी को जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो करने चाहिए। ठीक है, आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल योर 3 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ। दिस शुड बी लास्ट क्वेश्चन। खाना खाना है? सर, मैं खुद मतलब कैंसर से पीड़ित हूँ। तो मैं 2 साल पहले ही मुझे कैंसर किडनी पे हुआ था, और उस टाइम पता नहीं चला था। वो सुनना ही दे रहा है मेरी आवाज? हाँ, दे दे। तो उस टाइम मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब किडनी में स्टोन है। तो स्टोन के लिए मुझे दवाई दी गई। उसके बाद में ब्रीफली बताएं प्लीज, ब्रीफली शॉर्ट में बोलिए प्लीज। हाँ हाँ। अच्छा, तो अब मेरे मतलब ट्रीटमेंट चलता है, पेट स्कैन करते हैं, तब इम्यूनोथेरेपी चल रहा है मेरा। ठीक है। तो अब वापस एक बार में आता है और दूसरी बार में क्लियर है करके आता है। फिर वापस 1-3 महीने बाद करा दे तो थोड़े थोड़े वापस स्पॉट्स दिखते हैं। तो इसमें मेरे कोई खाने की वजह से वापस आते हैं, या मैं कुछ गलत मतलब मेरी वजह से कुछ ऐसे वापस पनप रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं, तो मुझे आपकी वजह से कुछ नहीं पनप रहा है। पहली बात, किसी खाने की वजह से नहीं पनप रहा है। ये रीनल सेल कार्सिनोमा होगा आपका, और रीनल सेल कार्सिनोमा कई बार इस तरह से रेकरेंस होता है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी होता रहता है। ये कैरेक्टर ऑफ द ट्यूमर ही ऐसा है जिसके कारण होता है। और बाकी डिटेल इसके बारे में
बताना, कमेंट करना तभी पॉसिबल होगा जब शुरू से लेके एंड तक आपका सारा डिटेल एनालिसिस कर पाएंगे, तभी बता पाऊंगा। बट ऐसा बहुत बार होता है जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो ऐसा क्या कोई मीठा खाए या कोई दूसरा खाए तो ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई खाने पीने से आपका जो बार बार होता है वो नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, तो ये मतलब हर बार आता ही रहता, बहुत परेशान सा हो गया अब। नहीं, मैं समझता हूँ। देखो, मैं डिटेल में इंडिविजुअल केस और इंडिविजुअल प्राइवेसी की सवाल है, तो आपका केस इस तरह से सबके सामने में पब्लिक मीटिंग में डिस्कस नहीं कर सकता। एक बार बैठ सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट सारे देख के, आई कैन गाइड यू, बट सिंस दिस इज ए पब्लिक मीटिंग तो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट एंड इसके बारे में करना मेरे ख्याल से नॉट एथिकल। तो क्या आपका नंबर मिल सकता है, मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? नंबर आपको दे देंगे, ऑर्गेनाइजर्स आपको दे देंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आई थिंक वी स्टॉप हियर टुडे। यस सर, थैंक यू सो मच। Yes, sir. और से तो बहुत इंक्वायरी होगी और we can plan another day. कभी और Any day we can plan any other day, no problem. You are welcome. सबके डाउट्स को एक लिस्ट बना। I think maximum doubts जो genuine doubts है clear हो गए मुझे लगता है, क्योंकि most of the questions which you have asked are very genuine and very good questions. So I think it's very informative, and thank you very much for giving me this opportunity to answer your queries. To आपको मौका मिला बताने का, सभी को मेरी तरफ से जय जिनेंद्र, और बहुत जल्दी फिर मिलते हैं, ठीक है? Thank you very much, Dr. Saab, for such an informative session. And yes, really it was like awareness काफी अच्छी हो जाएगी लोगों में, से उम्मीद रखते हैं हम लोग। और आपको एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत आसान तरीके से आपने समझाया। थैंक यू थैंक यू Thank you so much, Dr. Thank you. Sarla ji, thank you so much for conducting this session. Thank you so much, Dr. Sir. Thank you, Rachna ji, for this. Thank you everybody for attending the session and making it a successful one. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you, बहुत अच्छा रहा। Very informative. अब आप ग्रुप में मैं सर के नंबर समझाने का तरीका एकदम सिंपल लैंग्वेज, बहुत सिंपल था, इरिटेट भी नहीं हुए, बहुत अच्छे से समझा है। और कैंसर तो पार्ट ऑफ बॉडी में तो 3 जगह का तो है ही है, और अभी तो किडनी, स्टोमक सब हो रहा है। ये अपने जेब में क्यों होने लग गए? इतना ज्यादा पहले नहीं होता था। एक्चुअली कैंसर सेल्स है ना, होती है सब अंदर। हवा में, खाना पीना भी तो सब तो कौन सा है, अभी माइक्रोग्रीन्स में जाना पड़ेगा। अब तो कुछ है ही नहीं, सब सब्जी में बोलो, किसमें बोलो, सब तो इंजेक्ट होके आते हैं। गाय का दूध और भी पीते हैं बच्चे, तो उसमें भी तो इंजेक्शन से तो प्रेगनेंसी हो रही है उनकी, तो हार्मोन्स के भी जा रहे हैं।